हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज है 18 जून 2020। आज की करंट अफेयर्स पढ़ ले। जो हेडिंग्स हैं वो है नंबर 1 IM विजन रिकमेंडेड फॉर पद्मश्री। दूसरा नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तीसरा है KVIC टैप्स इंडियन पाम इंडस्ट्री। चौथा है अरुणाचल प्रदेश न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी इन दिल्ली। नेक्स्ट है सोलर एक्लिप्स इन इंडिया। उसके बाद इंडिया चाइना क्लैश एट गलवान वैली। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। उसके बाद है इंडिया टू सप्लाई न्यूमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम नेशंस। ठीक है ना। तो पहला हम देख लेते हैं IM विजन रिकमेंडेड फॉर पद्मश्री। ठीक है ना। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिसेंटली रिकमेंडेड द फार्मर इंडियन कैप्टन IM विजयन फॉर द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द पद्मश्री. IM Vijayan has scored 40 goals in over 79 matches. He won Arjuna Award in 2003, also in 1993, 1997, 1999. He was awarded the best Indian player of the year. उसका पद्मश्री क्या होता है? पद्मश्री इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. द अदर 3 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स आर भारत रत्न, पद्मा विभूषण एंड पद्मा भूषण. तो ये पद्मश्री चौथा है. ठीक है ना. द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ द कंट्री. पद्मा अवार्ड्स देखते हैं. द पद्मा अवार्ड्स आर बीइंग अवार्डेड टू द सिटीजन सिंस 1954. The awards are being presented under the categories such as medicine, education, sports, literature, industry, public affairs, social service. As of 2020, around 31,323 people have received this award. Okay. ठीक है. ये हमने पहले वाला टॉपिक पढ़ा. उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में. ठीक है. The Ministry of Labour is to fast track the national employment policy. The main idea of framing the national employment policy is to lay out a roadmap that will provide incentives for employment generation. Highlights: the policy will aim at absorbing additional 5 million workforce every year. Also, the policy will focus on formalizing 500 million workforce in the country. It will also ensure social security and job security for them. The policy will frame a roadmap to provide incentives for employment generation. Also, the policy will focus on the challenges thrown by the COVID-19 crisis. Then objectives. The national employment policy is to be framed focusing on twin objectives as follows. Number 1, to attract new enterprises and industries to generate employment opportunities. Second है to improve the skill set of existing workforce and make them employable. This will also help in India gearing up to attract companies from China to set up manufacturing units in India. ठीक है ना. ये दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ. उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे कि KVIC टैप्स इंडियन पाम इंडस्ट्री. ठीक है ना. The Khadi and Village Industry Commission KVIC Khadi and Village Industry Commission is to roll out a project to produce Palam Gur and Neera PALAMGUR Palam Gur and Neera. ठीक है ना. NEERA Neera. The initiative is to generate huge employment. Highlights: Neera is to be introduced as a substitute for soft drinks. This will create self-employment opportunities to tribal. It was first launched in Maharashtra where there are more than 50 lakh palm trees. ठीक है ना. About the initiative, the KVIC distributed tools for making palam good and to attract Neera. The tools included axes मतलब कुल्हाड़ा. ठीक है ना. Ropes and knives means छुरी. ठीक है ना. The KVIC also provided a 7-day training program to the local artisans. The initiative has been rolled out by the Ministry of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises. Now background. Neera is extracted from the palm trees before sunrise. ठीक है ना. सूरज आने से पहले palm tree से करा जाता है, निकाला जाता है. There are more than 10 crore palm trees in the country. However, due to lack of commercial market techniques, large-scale Neera production has not commenced in the country. Neera also has great export potential. Neera is consumed weekly in countries such as Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, अफ्रीका एंड श्रीलंका. ठीक है ना. तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर. ठीक है ना. A new fish species called Schizothorax psychocerumensis
शाइजोथोरैक्स ये जीनस है। सिकुसिरुमेंसिस SIKU SIRU सिकुसिरुमेंसिस शाइजोथोर न्यू फिश स्पीसीज शाइजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ, the name of the species has been derived from the names of the rivers where the fish was found. They are river Siram and river Siku। ठीक है, 2 रिवर हैं, सीरम SIRUM सीरम एंड रिवर सिकू, वहाँ से नाम ये आया। ठीक है ना। शाइजोथोरैक्स देखते हैं। द शाइजोथोरैक्स फिश इज़ फाउंड इन वेस्टर्न एंड साउदर्न चाइना, Central and Southern Asia. They are mainly found in lakes, streams, rivers and highlands. There are more than 65 species that are recognized under this genus. Now freshwater fish के बारे में देखते हैं। The freshwater fish are those that spend their life in water that has salinity less than 1.05%। ठीक है ना। अराउंड 41.24% ऑफ द फिशेज नोन आर फ्रेश वाटर फिशेज। द फ्रेश वाटर फिशेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज कोल्ड वाटर, वार्म वाटर एंड कूल वाटर फिशेज। नाउ साल्ट वाटर फिश के बारे में देखते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मैरीन फिश। द फिशेज दैट लिव इन एस्चुरीज आर कैटेगराइज्ड एज साल्ट वाटर फिशेज। एस्चुरीज आर एरियाज वेयर द रिवर्स एंड ओशंस मीट। ठीक है ना। ये टॉपिक हो गया हमारा कवर। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस करंट अफेयर वाली वीडियो में, वो ये है कि लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी इन दिल्ली। ठीक है ना। हाँ, द दिल्ली गवर्नमेंट इज़ टू कन्वर्ट द राधा स्वामी स्पिरिचुआ सेंटर, राधा SOAMI राधा स्वामी स्पिरिचुआ Center SPIRITUS Spiritual Center into a COVID-19 care facility. The center is as large as 22 football fields। 22 फुटबॉल फील्ड्स, इतना बड़ा है ये। ठीक है ना। हाईलाइट्स देखते हैं। दिस सेंटर विल बी द लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होगा। इट विल होल्ड मोर देन 200 हॉल्स विद 10,000 बेड्स। 10,000 बेड्स होंगे, 200 हॉल्स होंगे। दिस इज़ बीइंग डन टू रैम्प अप द कैपेसिटी ऑफ बेड्स इन द कैपिटल रीजन। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज़ द प्लान? द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ प्लानिंग टू अकोमोडेट 50 पेशेंट्स इन अ hall. The halls are to get adequate lighting and fans. The halls will also be provided with coolers. Separate tents are to be constructed. It is to be ready for treatment of patients by June 30, 2020। 30 जून तक से ये रेडी हो जाएगा। द सेंटर विल आल्सो हैव प्रोविजंस फॉर अकोमोडेशन ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है ना। अच्छा, बैकग्राउंड देखते हैं। द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस सडनली इंक्रीज्ड विद 44,688 केसेस। 44,688 केसेस एकदम बढ़ गए। ठीक है ना। द दिल्ली गवर्नमेंट विल आल्सो स्टार्ट द रैपिड एंटीजन टेस्ट टू इंक्रीज COVID-19 testing in the region. It is to be noted that the Indian Council of Medical Research ICMR recently approved the test to increase the testing potential of the country. अच्छा, with the increase in testing, more number of cases are likely to be hospitalized, hence the number of bed requirements is to increase। ठीक है ना। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। आगे वाला देखते हैं। आगे वाला ये है कि सोलर एक्लिप्स इन इंडिया। ठीक है ना। हाँ, द अर्थ इज़ टू विटनेस एन एनुअल सोलर एक्लिप्स ऑन जून 21, 2020। द एक्लिप्स इज़ टू बी द डीपेस्ट एज द मून इज़ टू कवर 98.8% ऑफ द सन। हाईलाइट्स: देर आर 4 टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सेस। दे आर पार्शियल सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स, हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स एंड एनुअल सोलर एक्लिप्स। ठीक है ना। पहले देखते हैं टोटल एक्लिप्स ये क्या होता है। द टोटल एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्प्लीटली ऑब्स्क्योर OBSCURE से ऑब्स्क्योर द सन। उसके बाद एन्यूलर एक्लिप्स देखते हैं। द एक्लिप्स दैट अकर्स व्हेन द सन एंड द मून आर इन लाइन विद द अर्थ। ड्यूरिंग दिस एनुअल एक्लिप्स द सन अपीयर्स एज अ ब्राइट रिंग आर एन एन्यूलस। ठीक है ना। तीसरा आ गया हाइब्रिड एक्लिप्स। दिस टाइप ऑफ एक्लिप्स शिफ्ट बिटवीन टोटल एंड एन्यूलर एक्लिप्स। ठीक है ना। उसके बाद चौथा है पार्शियल एक्लिप्स। दिस एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन एंड द मून आर नॉट इन लाइन विद द मून एंड द अर्थ। ये पार्शियल एक्लिप्स। उसके बाद इंडिया का देखें। द एक्लिप्स टू अकर ऑन जून 21, 2020 विल बी विजिबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। द एक्लिप्स इज़ टू कंटिन्यू फॉर 6 आवर, 6 घंटे तक चलेगा। The eclipse is to be visible in 2 states such as Rajasthan, Haryana, Uttarakhand. To the east, to the rest of the country, the eclipse is to be partial। ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि इंडिया चाइना क्लैश एट गलवान वैली। इंडिया चाइना क्लैश एट गलवान वैली। ठीक है ना। हाँ,
A violent clash broke out between the Indian and the Chinese soldiers recently in the Galwan Valley of Ladakh region. Around 20 Indian soldiers were killed in the face-off. ठीक है ना, highlights. हाँ, the loss of 20 army personnel on the line of actual control is considered as the most violent face-off between Indian army and the Chinese troop in more than 5 decades. ठीक है ना, what is the issue? The armies of India and China are currently engaged in a standoff in Galwan Valley, Pangang Tso Lake, दामचौक, हाँ उसके बाद दौलत बेग ओल्डी ओल्डी इन लद्दाख, ये रीजन है। पेंगांग गलवान वाली, पेंगांग सो लेक, डैमचौक, उसके बाद दौलत बेग ओल्डी इन लद्दाख। द स्टैंड ऑफ बिटवीन द कंट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट वीक्स एज इंडिया इज बिल्डिंग अ स्ट्रेटजिक रोड थ्रू द गलवान वैली दैट इज क्लोज टू चाइना। द रोड कनेक्ट्स द रीजन टू एन एयर स्ट्रिप। दिस इम्प्रूव्स मिलिट्री एक्सेस ऑफ इंडिया टू द रीजन। उसके बाद है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, देखते हैं। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया श्री एस जयशंकर हेल्ड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद हिज काउंटरपार्ट वैंग यी। ठीक है ना, द मिनिस्टर हैज़ कन्वेड द प्रोटेस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ओवर द स्टैंड ऑफ इन स्ट्रांगेस्ट टर्म्स। उसके बाद बैकग्राउंड, द स्टैंड ऑफ इन द गलवान एरिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट्स इन द 1962 वार। चाइना टिल डेट अपोजेस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन द स्टेट। इंडिया इन 2019 एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंडिंग द स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, चाइना वाज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज दैट कंडेम्ड द मूव। चाइना इवन ट्राई टू रेज द इशू इन द इंटरनेशनल फोरम इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है ना, द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज़ लॉन्च्ड खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। द सेंटर एम्स टू क्रिएट रोबस्ट रिपोर्टिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। ठीक है ना, हाईलाइट्स, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ आइडेंटिफाइड स्टेट ओन्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन 8 states of India. The facilities are to be upgraded into Khelo India State Centers of Excellence. The funds for the sports center are to be used for equipment, expert coaches, support staff and infrastructure through Khelo India scheme. About the scheme के बारे में देखते हैं। The centers are to be developed into world-class sporting facilities. The required infrastructure are to be identified by the states and the union territories. Around 8 centers have been identified out of 15 proposals. ठीक है ना, significance, Khelo India State Center of Excellence is to be established to strengthen the excellence in India in Olympics. The center will help the athletics to train in their respective discipline. उसके बाद सेंटर्स क्या देखते हैं। The 8 centers established under this scheme are located in अरुणाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, मिजोरम एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये लास्ट होगा, ये है इंडिया टू सप्लाई न्यूमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम नेशंस। ठीक है ना, हाँ, द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SERUM, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ टू सप्लाई न्यूमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज। द इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग्स। ठीक है ना, highlights, the Serum Institute of India and UNICEF have signed an agreement to supply pneumonia vaccines to low income countries. UNICEF के साथ करा UNICEF। ठीक है ना, under the agreement the institutes are to provide 10 million pneumococcal conjugate vaccine that will help prevent pneumonia in low income countries every year. The Pune based Serum Institute of India is to supply pneumonia vaccines to low income countries. The institute is one of the leading manufacturers of vaccines and immunobiological drugs. हाइलाइट्स देखते हैं। द इम्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड यूनिसेफ हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई न्यूमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज। अंडर द एग्रीमेंट द इंस्टीट्यूट आर टू प्रोवाइड 10 million न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स दैट विल हेल्प प्रिवेंट न्यूमोनिया टू लो इनकम कंट्रीज एवरी ईयर। अच्छा, उसके बाद गावी अलायंस के बारे में देखते हैं इसी टॉपिक में। GAVI गावी अलायंस। ठीक है, ये क्या है। हाँ, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद यूनिसेफ एंड GAVI अलायंस आर टू सप्लाई द वैक्सीन एट $2 पर डोज। ठीक है ना, दिस इज़ 43% लेस दैन GAVI प्राइस ऑफ $3.50 पर ठीक है ना डोज अंडर द एडवांस मार्केट कमिटमेंट। ठीक है ना, उसके बाद एडवांस मार्केट कमिटमेंट ये क्या चीज़ है। ठीक है ना,
Under Advanced Market Commitment, GAVI Alliance provided incentives to the pharmaceutical companies to develop and produce suitable vaccines. This was done to provide sustainable prices to the vaccines. The AMC मतलब कि Advanced Market Commitment was launched in 2009 में, ठीक है ना. It has so far prevented deaths of 7 लाख चिल्ड्रन इन 60 डेवलपिंग कंट्री. ये जो AMC प्रोग्राम था 2009 में चला, जो एडवांस मार्केट कमिटमेंट, इसने अभी तक 7 लाख बच्चों की जो है 7 लाख बच्चों की जो है वो मौत रोकने में हेल्प करी है 60 डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है ना. द AMC प्रोग्राम इज़ टू एंड दिस ईयर 2020 में एडवांस मार्केट कमिटमेंट प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है. द प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय कनाडा, UK, रशिया, बिल वही होगा, हाँ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड नॉर्वे, ठीक है ना. उसके बाद देखते हैं बैकग्राउंड. न्यूमोनिया इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड दैट टेक्स द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड एवरी 39 सेकेंड, ठीक है ना. हर 39 सेकंड में जो है निमोनिया एक बच्चे की जान ले लेता है वर्ल्ड में, ठीक है ना. अच्छा, गावी अलायंस क्या होता है, हाँ, वो हमने देख लिया, ठीक है ना. हाँ, एडवांस ये भी हमने देख लिया एडवांस मार्केट स्कीम के बारे में, ठीक है ना. हाँ, तो इससे हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.